Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, one of my subscriber sent me a WhatsApp message. Sir, we are frustrated these days. Make a video that can motivate us to handle the present situation. Now, when I wake up and read your messages, naturally, due to uncertain phase, we read messages, those are optimistic to pessimistic. Some candidates are worried if exams are held, how they will reach the venue. Others want early result of SBI Junior Associate so that they know what has happened to them. Some students are at the Twitter campaign for not holding of examination by railways or delayed result of SSC and so on. The lot of candidates are waiting for admit card because they say if admit card is released late, how they will arrange the transportation. So everywhere a sort of confusion is going on. And sometimes you feel pity also, sorry also. What is going on all around us? Why people, those are responsible for doing certain things, are not doing the things in a proper fashion? On one side, COVID-19 has shaken the economy of the country like anything, and the fall of GDP is to the tune of 24%. That means 1/4 of GDP what it was 1 year ago. It will take years to come back to the pre-COVID economy. Some people may be giving very rosy picture that after 3 quarters we will be having V-shaped recovery and so on. How it is possible? If so much of money is died, if so much of people have become unemployed, if so much of GDP is lost or wealth is lost, how it can be recovered in 3 quarters? It is beyond perception. So the damage is very severe, and very serious action at the part of everyone requires to recover the economy. Merely by daydreaming, the things will not improve. And the biggest sufferer is youth. So people, those who have lived their life, they may see this suffering for a few years only. But the people, those are young, and they have to still live. They have to see this misery for a longer period. And that's why I always say the period through which we are passing is not good period. So who will survive? Who will be able to handle this period? A person who is hardworking, means opportunities are less, he is working hard, still he will be getting the job. It will not be so easy to get into a job in coming months. This is a harsh reality. And that's why I am giving you right advice at right time. Focus on studies, focus on studies. And our mock test is helping you like anything. When I see the improvement in people, I am overwhelmed. The mock test is able to show them the right path, the path of success, and they are able to use it. So this is a time when we have to realize that we are passing through a challenging time. We cannot allow the time to slip away. And that's why I frequently advise now, if even you are getting a private sector job, accept it.
If you are working in private sector, don't leave it unless you get the alternative job. Don't only go after SSC and railways and government jobs. They may be difficult to come. Although there is a Twitter campaign, all those things are there. But ultimately, if government will have money, then only they will employ the people. This is a harsh reality. Even in banking sector, number of vacancies are going down, and this will go down further. In 2021, vacancies will be lesser than this year. 22, it will be even lower. 23 onwards, there may be almost nil vacancies. So this is a harsh reality. And that was when we were having the normal economic conditions. As now economic conditions are also worse, the pain will be much more. So how to take care of this? How to remain motivated? How to remain positive? To remain positive is we have to work harder. We have to work better than others. We have to focus on study. We have to grab every opportunity that comes our way. That is the only way. Certain people tell me, sir, I was selected on ICICI Bank. After reading some social media comment, I didn't join. Today I repent. I come across some people, they say, sir, I joined such and such bank as probation officer, but I was not having comfortable posting. I resigned. I thought I will be selected in UPSC. So yesterday only one fellow told me, he is from Himachal, sir, I was selected for RRB. I didn't join because my dream is to join State Bank of India as probation officer. Now what to do with such examples? This year SBI has not come out with PO notification till now. So what will happen? In IBPS, PO vacancies are already lower. What are the chances of selection? Even in IBPS clerk, vacancies may be low. SSC is not holding the future exams or delaying the exam or not releasing the previous result. SBI has not released the result of junior associate till now. So it's a very difficult time. It is very challenging time. No doubt about it. But does not mean everything is lost. There is never a situation when everything is lost. Yes, something is lost. So if we focus on our study, if you continue to work as per my guidance, still you will get some job, maybe in government sector bank or private sector bank. Banking and insurance, maybe public sector or private sector, will continue to provide you jobs. But again, these will be less jobs. This we have to be very clear. The number of jobs will go down time and from now onwards. This is a harsh reality. We have to accept it. That's why we have to always keep second option open. Certain people may like to go for self-employment. That is also good. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, सर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तरह तरह की खबरें आ रही है, एक मोटिवेशनल वीडियो आप बना दीजिए. अब होता क्या, सुबह उठते हैं, अपने चैनल पे जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज इसको पढ़ते हैं, तो तरह तरह के आशावादी और निराशावादी मैसेज मिलते हैं. कुछ लोग बताते हैं, सर मैंने ये मेहनत करी, इतने मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए, आज मेरी पोजीशन इंप्रूव हो गई है, खुशी मिलती है. दूसरा मैसेज पढ़ते हैं, वो कहते हैं, सर अगर एग्ज़ाम हो गया, मेरा तो सेंटर 500 किलोमीटर दूर है, मैं पहुंचूंगा कैसे, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा है. तीसरा मैसेज पढ़ते हैं, पता लगता है कि सर एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड आ जाए तो मेरी तो पूरी तैयारी है, मैं तो पास हो जाऊंगा. इसका अर्थ क्या है, हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से चीज़ों को देख रहा है. पर हो क्या रहा है कि जो लोग इवन रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे भी बैठे हैं, वो भी शायद अपना काम ढंग से नहीं कर रहे. अब IBPS RRB यदि टाइम से एडमिट कार्ड दे दे या बता दे एग्ज़ाम के बारे में, तो क्या हर्ज है, सबका फायदा हो जाए, किसी को इतनी टेंशन ना हो. पर एक एंजाइटी बनी हुई है.
SBI जूनियर एसोसिएट अपना रिजल्ट निकाल दे तो क्या हर्ज है, RBI के डेट अनाउंस हो जाए तो क्या हर्ज है, SSC अपना रिजल्ट निकाल दे तो क्या हर्ज है, रेलवे अगर बता दे कि एग्ज़ाम करना है या नहीं करना है तो क्या हर्ज है। पर हम देखेंगे कि कोई भी अपना अपना जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार ही नहीं है, या उनकी क्या मजबूरी है वो बताना नहीं चाहते हैं, यह एक अलग बात है। पर सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रहा है यूथ। सफ़र वो नहीं कर रहा कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, उनके पास तो अब कुछ साल हैं, बीत ही जाएंगे। पर इसका नुकसान किसको हो रहा है, हर्जाना किसको भरना पड़ रहा है? जो यंग है, यूथ है। अब कोविड-19 के बाद GDP का पहला आंकड़ा आया, 24% फॉल, कमाल हो गया। 1/4 ऑफ इकोनॉमी श्रिंक हो गई। अब सब लोग कहेंगे ये तो कोविड से हो, अरे और कंट्रीज में भी तो कोविड है, उन कंट्रीज की क्यों नहीं इतनी श्रिंक हुई? US की क्यों नहीं श्रिंक हो गई, रशिया की क्यों नहीं श्रिंक हो गई, ब्राजील की क्यों नहीं इतनी श्रिंक हो गई? उनके तो हमारे लगभग बराबर के केसेस हैं, हमारी ही श्रिंक हो गई सबसे ज़्यादा। हमारे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की पॉजिटिव GDP आ गई, पाकिस्तान की भी ना के बराबर श्रिंक हो गई। तो ऐसा क्या हो गया? सोचने वाली बातें हैं। तो जो भी अब ये हो रहा है, अब कुछ लोग कहते हैं जी क्या है, कोई बात नहीं, 3 क्वार्टर में रिकवर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 3 क्वार्टर में रिकवर? 1/4 GDP जिस कंट्री की खत्म हो जाए, लोगों की वेल्थ खत्म हो जाए, लोगों की नौकरियां चली जाएं, डिमांड कंप्रेशन हो जाए, लोग अपने जहां लगे हुए थे वहां से छोड़ के गांव में चले जाएं और अभी तक वो वापस नहीं आए, कैसे अपने आप 3 क्वार्टर में हो जाएगी? कोई जादू है? मेरा मानना यह है कि जो प्री कोविड लेवल की इकोनॉमी आने में अब कई साल लग जाएंगे। हम बहुत पिछड़ गए हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। और इसीलिए हमें इस परिस्थिति को जानते हुए ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। जॉब अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो गई है, होती रहेंगी, ये हमें मानना पड़ेगा। तो ये लोग अड़े हुए हैं कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, मुझे SSC से ही लेना है, रेलवे से ही लेना है, या पब्लिक सेक्टर बैंक से ही जॉब लेना, हो सकता है उनको निराशा हाथ लगे। तो मेरा हमेशा मानना ये है कि हमें प्रैक्टिकल बने रहना है, हमें बैंक जॉब्स के लिए तैयारी करते रहना है। अगर साथ साथ आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी देखना चाहिए, प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि सस्टेन करने के लिए नौकरी करना आवश्यक होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा आपको। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ रही है उसको ग्रैब करिए। ये अगर हम पुरानी परिस्थितियों से मुकाबला करेंगे कि इतनी मेहनत से वो बैंक का PO बन गया था, वो बैंक का अफसर बन गया था, वो मैनेजर बन गया था, वो स्थिति अब आने वाले दिनों में नहीं है। SSC का देखो कमाल हो गया, 2018 का प्रोसेस चलते चलते अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, 21 आने को हो गया। रेलवे में 19 से उन्होंने एप्लीकेशन मांगी हुई है, अभी तक हुआ ही नहीं है। कुछ लोग कंपेन भी चला रहे हैं, मगर मतलब हैरानी की चीज़ें हो रही है ना। अब बैंक के अंदर भी देखो SBI जूनियर एसोसिएट का रिजल्ट ही नहीं आया। अब अच्छा भला ये एडमिट कार्ड निकाल सकते थे टाइम के ऊपर, नहीं निकाल रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। कॉल सेंटर को कॉल करो, अपना कैजुअल से रिप्लाई दे रहे हैं। मतलब कौन ले रहा है जिम्मेवारी है? कोई तो इसके लिए जिम्मेवार होना चाहिए। लाखों बच्चे जिनकी आशाएं हैं वो बेचारे डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई उनको कंसोल करने वाला नहीं है, और फिर जो उनके सामने आता है वो उस पर भड़क जाते हैं। अब कई बार हम भी मतलब ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं, दिल दुखी होता है। पर ठीक है, बच्चे हैं, किसी को तो कहेंगे, किसी पे तो अपना हक समझ के कुछ बोल देंगे, कोई बात नहीं, तो सह लेते हैं उसको। पर जिनको ये करना है वो कहाँ है? वो क्यों नहीं ऑन कर रहे अपनी जिम्मेवारी? ये समझने वाली चीज़ है। मगर हमें क्या करना है? हमें टूटना नहीं है,
परिस्थितियां कठिन है, ये सबको पता है, पर जीतेगा कौन? जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेगा। इसमें से देखेगा कि मैं कैसे और ज़्यादा मेहनत करूं, और ज़्यादा पढ़ाई करूं, फोकस पे स्टडीज़ पे फोकस करूं और मैं अच्छे नंबर लाके सबसे अव्वल निकल जाऊं। कितने बच्चे हैं मेरे को मॉक टेस्ट जिनको मैंने सजेस्ट किया था, ले लिया, इम्प्रूवमेंट आ रही है, मुझे बताते हैं कि सर जब मैंने शुरू किया था मेरे इतने नंबर थे, आपके बताए रास्ते से चल के आज मेरे इतने नंबर आ गए, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। क्यों होती है? कि मैंने जो अपने अनुभव से उसका रास्ता दिखाया, उससे आज वो वहाँ पहुँच गया जहाँ शायद उसको इस साल नौकरी मिलने वाली है। ये खुशी होती है। नौकरियाँ कम है, बढ़ जाएंगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। किस सेक्टर में नौकरियाँ आएंगी नहीं आएंगी मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर जहाँ आएंगी वहाँ हमारे चैनल के लोगों की सिलेक्शन हो जाए, इसमें मैं ज़रूर मदद कर सकता हूँ आपकी। आपको निरंतर मैं पढ़ाई पर लगाए रखता हूँ। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मैंने लोगों को मोटिवेट करके पढ़ाई पे लगाए रखा, और जब इस साल के रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे हमारे चैनल के हजारों बच्चे नौकरी पा जाएंगे जैसे पिछले सालों में पाए हैं। 11,000 से अधिक आज सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे, जो आइदर बैंकिंग में नौकरी कर रहे हैं, इंश्योरेंस में कर रहे हैं, या अदर सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, या सिलेक्शन हो चुकी है और नौकरी ज्वाइन की वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो ने उनकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लाया है। चाहे उन्होंने मेरे बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो से फ़ायदा उठाया, मेरे मोटिवेशनल वीडियो से फ़ायदा उठाया, मेरे मॉक टेस्ट से फ़ायदा उठाया, मेरे बताए गए और रास्तों से फ़ायदा उठाया, पर फ़ायदा ज़रूर हुआ है उन्हें, और इसीलिए वो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितने ही बैंकों के बच्चों के आज भी जो ज्वाइन करने के बाद भी मेरे पास पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर अब मैं ये सीट पे बैठा हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, क्या करूँ? खुशी होती है मुझे, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज का खजाना है। कोई मुझसे बात करता है, मैं उसको बांट सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसको किसी भी हालत में स्लिप नहीं होने देना है। मेरा तो यही आपको संदेश है। गॉड ब्लेस यू ऑल।